Hello everyone. Namaste, namaskar, adab. Welcome to our channel Unlock Social Work with Yadnish. फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज की इस सीरीज में आज हम एक नई फेलोशिप लेके आए हैं जिसका नाम है भूमि फेलोशिप। यह फेलोशिप एग्जैक्टली है क्या, या भूमि ये एनजीओ एग्जैक्टली क्या करती है, या इस फेलोशिप में क्या अपॉर्चुनिटी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका स्टाइफंड क्या है, अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें जानने के लिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए। सो लेट्स बिगिन। जैसे भूमि फेलोशिप, एग्जैक्टली भूमि फेलोशिप एक लार्जेस्ट एनजीओ वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, and mostly they focus on creating more leaders like through volunteering, and they try to empower individuals to get an opportunity through volunteering, as well as, and mostly they focus on education as well as volunteer. Like you can see, they are leading NGO in India focusing on two areas, education and volunteer. And other than they focus on education also they mostly work with low income, yeah, low government schools and private schools. They also focus on civic volunteering. Then they focus on leadership development, whether it's an individual or an organization level, or providing leadership to various stakeholders. So like you can see the stats, they have engaged around 33,000 plus volunteers this year, and this is a data as of 2023 as of now, and they have almost 14 plus years of volunteer services. ठीक है, so let's understand what is Bhumi Fellowship. So this Bhumi Fellowship was started in long back in 2020, and it is mostly focusing on providing a quality education in India. Mostly this fellowship is active in Chennai city of Tamil Nadu. You can see their deadline. Deadline is given November 5, 2023, यानी इनकी जो फेलोशिप की प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप प्रोसेस है, वो ऑलरेडी एक्टिव है और इसका लास्ट डेडलाइन November 5 है। एंड लाइक इट दे हैव मेंशन दे आर interested to revolutionize education in India, like transforming education in India with the help of the individuals, with the help of the young leaders. So they have just tried to give an overview ki why there is a need of Bhumi fellowship, why or why it is an important. Like there's some mention like India's education system is plagued with low learning outcomes, lack of trained teachers, inadequate infrastructure, and poor governance. So Bhumi NGO believes that the best way to solve the challenges is by creating a pool of leaders like who are committed, you who are committed to transforming education in India. And this fellowship is mostly a two year program, and like it will be included with hands-on training as well as on-the-job experience, like teaching and transforming schools in India. Its main vision is to achieve equitable education for all the children through systematic change. And what are its eligibility and offerings? Mostly, first eligibility criteria is that they need a young leaders who are graduates or one who in the final years, और एज क्राइटेरिया है वो between 20 to 30 years, and yes, stipends will be given around 30,000 per month. ठीक है, and there will be a almost 4 week initial trainings, induction trainings, as well as it will be oral. Like initially I said कि ओवरऑल जो भी फेलोशिप का लोकेशन रहेगा वो चेन्नई में रहेगा। ठीक है, आपको अगर स्टार्टअप करना है कुछ तो आपको तब भी एक सीड फंडिंग मिलेगी फॉर सोशल स्टार्टअप के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो एक बार हम एग्जैक्टली जान लेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन। वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग वो समझना चाहते हैं कि आपने क्या एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपिरेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है भूमि फेलोशिप का।
ठीक है। स्टेज 2, अगर यहाँ से आप स्टेज 1 से सिलेक्ट होते हो तो आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, अराउंड 30 मिनट्स का कन्वर्जेशन होगा कि आपने मोस्टली एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा है और या क्या नहीं लिखा है उसके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो स्टेज 3 बेसिकली इट विल बी अ फाइनल असेसमेंट and final stage of the selection process composing of lesson execution, group discussion and problem solving. So lesson execution यानी आपको कहीं ना कहीं एक आपको टास्क दिया जाएगा कि आपको जस्ट एक ये करना है कि आपको एक प्रैक्टिस दिखा कराना है कि एक क्लासरूम सेटअप में आप किस तरह से टीचर एक लेसन प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो या किस तरह से लेसन आप प्लानिंग कर रहे हो या चिल्ड्रंस को या स्टूडेंट्स या बच्चों को जो भी है उनको किस तरह से आप हैंडल कर रहे हो या क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार से कर रहे हो या ग्रुप डिस्कशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग में किस तरह से पार्टिसिपेट हो रहे हो। ये सब चीज़ें के लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और इसके बेसिस पे आपकी असेसमेंट होगी। ठीक है। और वो फेलोज में क्या देखना चाहते हैं, फेलोज पैशनेट होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने के लिए, कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकर्स होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं जो लार्जर लेवल पे इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लम्स होते हैं एजुकेशन सिस्टम में उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं एज अ क्रिटिकल थिंकर। ठीक है। रेजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है चैलेंजेस के टाइम, एबल टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड स्ट्रेंथन पार्टनरशिप थ्रू पर्पस ड्रिवन कन्वर्जेशंस, और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कहीं ना कहीं इन्होंने कॉलेज लेवल पे कुछ लीडरशिप स्पेसेस में काम किया रहेगा या जैसे कि आपने कहीं वॉलंटियरिंग किया है या कुछ इनिशिएटिव किया हुआ है एजुकेशन के लिए या जस्ट लाइक फॉर एनी सोशल कॉज, देन टू या यू कैन ट्राई फॉर दिस। ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। फेलोशिप लोकेशन है चेन्नई। तो इनके एफएक्यूज क्या है ये एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि एफएक्यूज में इन्होंने बेसिक बेसिक दिया हुआ है कि हाउ इज भूमि फेलोशिप डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर फेलोशिप्स इन द कंट्री। तो इन्होंने एक डिफरेंशिएट करना चाहा है कि एग्जैक्टली भूमि फेलोशिप अदर फेलोशिप से क्या डिफरेंट है। तो ये मोस्टली बेसिकली स्कूल अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक इट इज होल स्कूल अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं वो बस एक फोकस नहीं कर रहा है कि कहीं ना कहीं बस फाउंडेशन लर्निंग पे फोकस कर रहा है या बस प्री प्राइमरी या प्राइमरी या हायर सेकेंडरी या रेमिडल पे बस फोकस नहीं कर रहे एजुकेशन में, बल्कि वो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं, एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं स्कूल्स में। ठीक है। तो वो स्टेक होल्डर्स यानी कम्युनिटी है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, इन सबके ट्रेनिंग एज वेल एज कैपेसिटी बिल्डअप प्रोग्राम भी फेलोशिप के अंतर्गत चलाए जाएंगे। ठीक है। Where will my fellowship be? In Chennai, Tamil Nadu. Do I need to know Tamil? Knowing Tamil is not mandatory, but will be an adding advantage. Will I get paid? Yes. You will receive a grant of 30,000 per month for a period of 2 years. The grant includes the annual 5,500 towards allowances, including house rent, laptop, mobile, and reimbursement. You will also eligible for fellow seat fund of annual 1 लाख अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड ग्रेजुएटिंग फॉर द फेलोशिप, यानी आपकी जब आप सक्सेसफुली फेलोशिप कंप्लीट करते हो तो आपको कहीं ना एक फेलोशिप फंड मिलेगा अमाउंट अराउंड 1 लाख रुपीज। ठीक है। what is the duration like 2 years and you need to work with private government aided schools। ठीक है। will I be trained during fellowship? Yes, the year begins with the training of basic knowledge mindsets टू सेट फुट इन स्कूल। मतलब यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको स्कूल में नहीं भेजा जाएगा, कहीं ना कहीं इनिशियली इंडक्शन में या आपका जो भी हैंड होल्डिंग कराएगा वो इनिशियल स्टेज में आपको कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डअप जरूर होने वाली है। ठीक है। व्हाट अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल टू मी आफ्टर द फेलोशिप, लाइक अगर कोई ग्रेजुएट फेलोशिप कर रहा हो, फेलोशिप के बाद अगर वो अपॉर्चुनिटी चाहता है कि एग्जैक्टली फेलोशिप करने के बाद उसकी अपॉर्चुनिटी क्या आ रहेगी, कहीं ना कहीं वो एनजीओस के साथ काम कर सकते हैं या जो भी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है या भूमि में भी ट्राई कर सकते हैं। भूमि में अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और इनकी जो भी अदर एफयूकीज है यानी अकोमेंडेशंस के क्या है, यानी एकोमेंडेशन कैसे मिलेगा, इनका एकोमेंडेशन का ये है कि कहीं ना कहीं आपको इनिशियल जब भी ट्रेनिंग होगी तब इंस्टीट्यूशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है भूमि उनके तरह से आपका रहना होगा, पर जब आपको एक स्कूल्स में प्लेस किया जाता है उस पर्टिकुलर
ब्लॉग्स में या कहीं कहीं प्लेस किया जाएगा, तब आपको आपका खुद का एकोमोडेशन देखना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिया हुआ है कि ग्रांट 30,000 में, इसी में आपके एकोमोडेशन आपको करना है, उसी के साथ साथ जो भी मोबाइल रिएम्बर्समेंट चार्जेस भी उसी में इंक्लूडिंग है, ठीक है। जब भी ट्रेनिंग होगी, जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्लान करेगी, तब तब का रहना ऑर्गेनाइजेशन बेयर करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अकोमोडेशन खुद से ढूंढना, आप कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी मैनेजर्स है, या जो भी एकोमोडेशन के कुछ अगर किसी का कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। आप फेलोशिप अगर बीच में छोड़ना चाहते हो तो उसका एक रीजन होना बहुत जरूरी है, आप छोड़ सकते हो, ठीक है, फेलोशिप, या एंड इट इज बेटर कि आप पूरा करो फेलोशिप, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट है या कुछ कंफ्यूजन आ रहा है फॉर्म भरते हो, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस के सेक्शन में जाके उनको मैसेज या मेल के थ्रू पूछ सकते हो। अब एप्लीकेशन प्रोसेस भी इनका इजी है कि कहीं ना कहीं आपको इनिशियली आप एक बेसिक डिटेल्स आपको पूछा जाता है, ठीक है, नेम, मोबाइल नंबर, परमिशन टू कांटेक्ट, वो आपको यहाँ पे कंसर्न देने की आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट हो कि नहीं हो। उसके बाद सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा। बेसिक जो भी सवाल होते हैं या जो भी ऐसे टाइप जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एक बेसिक सवाल आपके सामने आएंगे, वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। इस सभी के लिंक्स, इस फेलोशिप्स के लिंक्स, एनजीओ एग्जैक्टली भूमि एनजीओ है क्या, इसकी लिंक, और एप्लीकेशन प्रोसेस के लिंक, एफओक्यूज के लिंक, एज वेल एज जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया रहेगा तो डिसलाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।